All right, so in the last session we started off with revision of electromagnetic induction. Basics आपको पता होगा what is electromagnetic induction, and if you remember in the last session we stopped at proving Lenz's law. हमने theoretically E equal to minus d phi by dt prove किया था, and उसको हमने motional electromotive force ऐसा नाम दिया था, और उसमें first case that we saw was translational motion of a conductor. Translational motion of a conductor. In this case, हमारे पास एक magnetic field था which was going inside the plane of the screen. So we had magnetic field something like this. तो जो मैं cross बता रहा हूँ something like this. And this cross as you already know, इसका मतलब होता है that magnetic field is going inside the plane of the screen. And then we had a loop. हमारे पास एक loop था something like this. Okay. और हमने इस loop को slowly with velocity v, we took this loop out from the magnetic field. तो जैसे हम loop को move करेंगे तो flux change होगा मतलब EMF induce होगा मतलब current induce होगा, और current induce होने का मतलब था it became a current carrying conductor inside external magnetic field. तो इस पे एक magnetic force act हो रहा था. Using all this, we have proved E equal to minus d phi by dt. But according to your textbook, there is another way of proving the same thing. So translational motion of a conductor में you can either prove Lenz's law E equal to minus d phi by dt जो हमने कल देखा, या फिर आप Faraday's second law E equal to d phi by dt without the negative sign भी prove कर सकते हो. थोड़ा सा difference है दोनों methods में. Difference ये है, पहले हम पूरे लूप को बाहर निकाल रहे थे, अब हम लूप को बाहर नहीं निकालेंगे. The whole loop is in reality, बोल सकते हो हमारे पास लूप है ही नहीं, ऐसा बोल सकते हो आप. So you have a rectangular frame like this. इस rectangular frame के तीनों sides fix है, सिर्फ यहाँ पे मैं एक moving side लगा रहा हूँ. So this is the side one, the green, which can move. This is a flexible side. So let me give it some name. इसको नाम देते हैं हम लोग. Let us call this as A, B, C, and B. Idea is more or less same. AB, AD और CD side ये fixed है, they cannot move. सिर्फ ये जो side आपके पास है BC, it can move. ये side BC it can move. तो जैसे ये move होगा तो flux length will be changed. तो पहले तो हम इनिशियल फ्लक्स कितना है उसकी बात कर लेते हैं. सो लेट अस से, एंड बाय द वे बाकी नोटेशंस वी विल कीप सेम, मतलब द लेंथ ऑफ दिस साइड विल स्टिल रिमेन L, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज x. तो x इज अ वेरिएबल, क्योंकि आप जैसे ही BC साइड को मूव करोगे तो x चेंज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा. तो इनिशियल फ्लक्स linked with the coil is the same, B into A, which is B into L into X. कल भी हमने इसी point से start किया था. What is the initial flux linked with the coil? That is B into L into X. Okay, so and as I told you, BC side can move. तो अगर BC side move हो सकता है और हमने BC को मूव कर दिया तो फ्लक्स विल चेंज. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d phi by dt की बात होगी, which is d dt of BLX. B कांस्टेंट है क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं किया. L, ये जो साइड L है, मतलब BC साइड है जिसका लेंथ L है, या AD साइड है जिसका लेंथ L है, even though if we are moving, हम इसको मूव कर भी रहे हैं तो डजंट मेक एनी डिफरेंस. पूरा का पूरा L हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में रहने वाला है. व्हाट इज चेंजिंग इज X.
तो बी एल डी एक्स बाई डी टी, ये आ गया आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. देयरफॉर डी फाई बाई डी टी विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज बी एल वी. Equation number 1, where v is the velocity with which this side is moving. Okay, तो कंपेयर करोगे तो जो अप्रोच मैंने आपको बताया था उस अप्रोच में हम पूरे लूप को बाहर मूव कर रहे थे, यहाँ पे एक साइड को मूव कर रहे हैं, उसका भी वेलोसिटी हमने v लिया था, इसका वेलोसिटी v लिया है. आगे जो होने वाला है वो भी सेम है. इसके आगे क्या होता है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है मतलब करंट इंड्यूस होता है. So there will be induced current here. तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, राइट. सो इंड्यूस करंट इंड्यूस होने की वजह से नाउ दिस बिकम्स करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे फोर्स F1 होगा, यहाँ पे फोर्स F1 होगा, F2 होगा, दे विल कैंसल आउट. यहाँ पे फोर्स F होगा. तो सेम स्टोरी रिपीट्स, बात सेम है. सिमिलरली जब हम बोलते हैं करंट इंड्यूस हुआ मतलब क्या, द चार्जेस स्टार्टेड फ्लोइंग, चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हुए. मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q. ओके, या फिर नीचे भी ले सकते हो, यहाँ पे एक चार्ज है Q. यू कैन से यू हैव अ चार्ज Q ओवर हियर. ओके, अब हमको पता है what is the force acting on a charge Q inside external magnetic field, that is F Q V bar cross V bar, that is Q V B sin theta, where theta is angle between magnetic field and velocity. Obviously charge अगर B to C जाएगा तो velocity is directed upwards और magnetic field तो अंदर की तरफ जा रहा है, it is going inside the plane of the screen, which means that B बार और V बार में एंगल जो है that is basically 90 डिग्री. There is some confusion here, जो confusion आप रखना मत. एक confusion ये है कि ये velocity, this is the velocity with which you are moving the side, और ये velocity V, this is the velocity of charge. इन दोनों में confusion होता है, that's why let me call this as V1. Okay, you need to understand. हमने साइड BC को मूव किया विथ वेलोसिटी V1, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस होने होता है मतलब चार्जेस स्टार्ट मूविंग. तो हमने एक चार्ज ले लिया जो B पोजीशन पे है और वो B से C जाएगा चार्ज, तो फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब चार्जेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव होते हैं तो उस पर फोर्स एक्ट होता है, व्हिच इज Q V bar क्रॉस B bar. तो Q will be sin theta, तो थीटा 90 डिग्री है, therefore force F is Q V B. Okay, just a minute. So you know what is force acting on a moving charge now. Okay, तो अब obviously अगर इस चार्ज Q को B से C जाना है मतलब डिस्टेंस L कवर करना है तो वर्क डन होगा, because nothing can move on its own. So work done in moving charge Q from B to C is F into L. तो हमको ये जो चार्ज है Q, ये B से C मूव करना है, राइट, मतलब डिस्टेंस L, और ऑलरेडी मूविंग चार्जेस में फोर्स कितना लग रहा है, Q into V into B. तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज Q V B L, ऐसा आएगा, राइट. सो यू हैव वर्क डन. देखो अल्टीमेटली आपको जब एग्जाम में लिखना होता है तो यू नीड टू फर्स्ट नो कि हमको करना क्या है. वी वांटेड टू हैव एन इक्वेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस का इक्वेशन चाहिए था हमको. तो ये वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, बिकॉज इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल. सिमिलरली यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू ईएमएफ इंड्यूस्ड. तो आपको ये पता होना चाहिए. Therefore, EMF induced E is work done by charge. Work done is Q V B L, और charge is Q cancel. तो EMF induced E आ गया आपके पास B V L. Equation number 2. From 1 and 2, अब equation 1 को देखोगे तो equation 1 में d phi by dt, that is rate of change of flux, is BLV.
and BLV is also equal to induced EMF, therefore E is equal to आपको मिल जाएगा d∅/dt। आ गया आपका ये फैराडे सेकंड लॉ का डेरिवेशन। ओके, सो दिस इज हाउ यू प्रूव इट। बहुत सिंपल सा केस था, ऑलराइट, एक्सट्रीमली सिंपल केस था ये। तो हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है जिसके 3 साइड फिक्स है, एक साइड मूविंग है। तो मूविंग साइड को जैसे हम मूव करेंगे विद सम वेलोसिटी v1, in that case flux link with the coil will change, so d∅/dt is equal to BLV। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, चार्जेस मूव होना स्टार्ट होंगे। तो हमने एक चार्ज ले लिया जो बी से सी पे जाना चाहता है, बिकॉज करंट मतलब चार्ज इज मूविंग। सो लेट अस से देयर इज अ चार्ज which is going from B to C, so force acting on this charge is QVB sin theta, but theta is 90, so QVB only। So work done in moving the charge from point B to point C is F into L, because work done is force into displacement is L, length L, so QVB L ऐसा आएगा। So work done is Q into V, so work done is basically Q into E। V की जगह पे इंड्यूस ईएमएफ ई लिखेंगे, क्योंकि V भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है, E भी ईएमएफ होता है, दे आर सेम बेसिकली। तो E is equal to W by Q, and then you have E equal to d∅/dt, right? अब as you see यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन था, a conductor was moving along a straight line, right? But ऐसा भी हो सकता है that a conductor basically rotates। So let us see what happens। हम बोलते हैं rotational EMF of a bar, rotational EMF of a bar। So what happens in this case is, सबसे पहले तो मैं magnetic field ले लेता हूँ। So we have again a magnetic field which is something like this, which is going inside the plane of the board, again plane of the screen। तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है something like this। Now इस मैग्नेटिक फील्ड में, inside this magnetic field we have a bar, a rod basically। हमारे पास एक रॉड है, let us say something like this, ऐसा एक रॉड है हमारे पास, more or less like this। ओके, इस रॉड को हमने एक पॉइंट पे पिवोट करके रखा है। व्हाट इज पिवोट बेसिकली? पिवोट मतलब टाई करके रखना इन शॉर्ट। तो लेट्स से ये जो रॉड है इसको यहाँ पे टाई करके रखा है, दिस इज पिवोट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के अबाउट वो रॉड रोटेट होगा। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आई विल जस्ट टेक दिस, copy this and take it over here। तो यहाँ पे कहीं पे एक पिवोट पॉइंट था। अब पिवोट पॉइंट मतलब क्या? इस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट होगा, सो द रॉड विल रोटेट अबाउट पिवोटल पॉइंट, ऐसा समझ लो। एंड आई एम सॉरी आई कैन नॉट शो दिस ग्राफिकली, मुझे उस पॉइंट पी को फिक्स दिखाना था, बट आई कैन नॉट शो इट। द पॉइंट इज आल्सो रोटेटिंग, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक पॉइंट के अबाउट वो पूरा रॉड रोटेट होगा, दैट इज पिवोटल पॉइंट। ऐसा समझ लो कि वहां पे किला ठोक दिया है एंड देन द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दैट पॉइंट, ऐसा समझ लो उसको। द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L। ओके, अब हम मान लेते हैं कि ये जो रॉड है, दिस रॉड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। तो ये जो रॉड है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है लाइक दिस। मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल, हम अज्यूम कर सकते हैं ना, the rod is made up of very very large number of small thin elements। तो ऐसा एक एलिमेंट पिवोटल पॉइंट से r डिस्टेंस पे है, इसका थिकनेस dr है, ऐसा मान लेते हैं, राइट? गुड। नाउ जब इस रॉड को हम लोग रोटेट होने देंगे, मतलब when we will make it free to rotate, so linear velocity will be v। क्यों? क्योंकि आपको पता है रॉड रोटेट होगा, मतलब ये जो एलिमेंट डी आर हमने लिया है एलिमेंट, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा।
जब सर्कुलर मोशन की बात होती है तो लीनियर वेलोसिटी v की बात होती है, which is along the tangent. Okay, so when the rod rotates, the element of the rod of thickness dr performs circular motion, and as you know, in circular motion the particle which is performing circular motion has tangential linear velocity v, which is equal to r omega. तो पहले इतना पता होना चाहिए आपको. Then since the rod is rotating, rod rotate होगा तो flux linked with the rod will change. रॉड रोटेट हो रहा है मतलब वो जो एलिमेंट है डी आर थिकनेस वाला वो भी रोटेट हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है. जब वो रोटेट होगा तो फ्लक्स लिंक्ड विद दैट डी आर एलिमेंट विल आल्सो चेंज. व्हेन इट चेंजेस EMF is induced, and that induced EMF DE is equal to BVDR. First thing is कि DE क्यों लिया, क्योंकि हम पूरे रॉड की बात नहीं कर रहे, हमने रॉड के एक एलिमेंट की बात की है. हम लोग पूरे रॉड की बात इंटीग्रेट कर लेंगे बाद में. फॉर द टाइम बीइंग हमने बोला कि रॉड जो है वो छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है, एच ऑफ लेंथ dr, उसमें से एक एलिमेंट हमने ले लिया एट डिस्टेंस r फ्रॉम द पिवोटल पॉइंट. जब रॉड रोटेट होगा तो ये जो एलिमेंट है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से फ्लक्स लिंक्ड विद द element will change or it is given by BVDR. BVDR क्यों लिखा हमने? If you remember, you see here EMF induced is BV length, BV into length. यहाँ पे thickness कितना है? DR है. तो instead of length, I am writing down thickness here. तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है that EMF induced is B into V into length. तो यहाँ पे भी EMF induces B into V into dr. Okay. Now, as you know, for circular motion, V is equal to R omega, where omega is angular velocity, क्योंकि rotation है तो angular velocity होगा. तो D is equal to B R omega dr. ये आ गया आपके पास. अब total induced EMF E, total EMF induced is E equal to integration over all dE from 0 to L. जो रॉड है वो जो रॉड है, as I told you, it is made up of n number of small elements from 0 length to L length. तो हर एक जब रॉड रोटेट होगा तो हर एक एलिमेंट रोटेट होगा, और जब हर एक एलिमेंट रोटेट होगा तो हर एक एलिमेंट का EMF इंड्यूस होगा. तो अगर मैं उन सब पे एडिशन कर लेता हूँ, मतलब इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, तो मुझे टोटल EMF इंड्यूस मिलता है. सो 0 to L dE is BR omega dr. So this is equal to B constant, omega constant, R dr from 0 to L. Therefore, you have EMF induced E as B omega R square by 2, 0 to L. तो ये आ गया आपका B ओमेगा L square by 2. ये आ गया आपके पास EMF इंड्यूस का फॉर्मूला फॉर रोटेशनल रोटेटिंग बार बेसिकली. so that is called as rotational EMF. ओके, तो बहुत सिंपल सा केस है ये. It was nothing. Now next is the concept of induction and energy transfer. तो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर बोलने से बेटर है कि यहाँ पे पावर का इक्वेशन निकालना है. तभी टॉपिक को जो नाम दिया है, आई एम फोर्स टू यूज द सेम नेम ऑफ दिस टॉपिक. सो इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. For this topic, I need diagram from last session. This one. Just a minute. Okay. All right. So
द आइडिया इज सेम. हमारे पास एक लूप है, एज यू कैन सी PQRS. हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है which is going inside the plane of board, of course, as you can see from here. The idea is more or less similar. वही चीज है कि आप इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हो, तो बाहर निकालोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. ये आपको ऑलरेडी पता है. तो इनिशियल फ्लक्स भी आपको पता होगा. बाय नाउ यू शुड नो इनिशियल फ्लक्स linked with the coil is B into A, which is B into L into X. So this basic thing you already know. फिर आपको ये भी पता है कि इस केस में EMF induced equal to BLV, ये भी हमने डिराइव किया था. तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द सेम डेरिवेशन अगेन एंड अगेन. ये जो टॉपिक है इसमें हमको ये इक्वेशंस ऑलरेडी पता है. मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ. एग्जाम में लिखते टाइम आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, बट हमने 3 बार रिपीट कर लिया है. सो यू शुड नो दिस नाउ. राइट नाउ एज आई टोल्ड यू कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो करंट भी इंड्यूस होता है. तो करंट इंड्यूस्ड इज E/R. कहाँ से आया? ओम्स लॉ से आया. V इक्वल टू IR मतलब E इक्वल टू IR मतलब I इक्वल टू E/R, और E आपके पास है BLV/R. इक्वेशन नंबर 3. राइट. इससे पहले के टॉपिक्स में हमने करंट का इक्वेशन नहीं लिखा था क्योंकि जरूरत नहीं थी. यहाँ पे इंड्यूस करंट कितना है उसका इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए वी हैव टू राइट इट हियर. ओके. नाउ एज यू नो, जब करंट इंड्यूस होता है तो उस केस में 3 साइड्स पे फोर्स है, F1, F2. F1 and F2, they are equal and opposite. They cancel out each other. Okay. So there is only one force F which is not getting cancelled out. Right. मुझे अगर इस फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट करना है dx, I want to move this coil out. मुझे इस कॉइल को बाहर निकालना है अगेंस्ट दिस फोर्स. तो डिस्प्लेसमेंट करना है अगेंस्ट दिस फोर्स, तो वर्क डन करना पड़ेगा. एंड वर्क डन W इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एज यू ऑलरेडी नो. ओके. राइट. सो वर्क डन है तो आपको पता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर जनरेटेड. तो व्हाट इज पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. So that is force into displacement upon time. Displacement upon time. अब displacement upon time क्या होता है? Velocity. तो power P turns out to be force into velocity. Equation number 4. मैं वापस समझा रहा हूँ. कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सिंपल, वही हम बार बार कर रहे हैं. हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. एक कॉइल है, इस कॉइल को हमने बाहर मूव किया है. बाहर मूव किया विद वेलोसिटी v. तो फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब करंट इंड्यूस हुआ. करंट इंड्यूस हुआ तो करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मतलब फोर्सेस एक्ट होंगे. 2 फोर्सेस कैंसिल होंगे. एक फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो डिस्प्लेसमेंट करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा बिकॉज फोर्स इज अपोजिंग दैट डिस्प्लेसमेंट. एंड देन other equations are already here, so I will not go into equations again and again. So work done is force into displacement, but power is work upon time. So force into displacement upon time is velocity. Division में इतना fast होना चाहिए. Okay, good. So you have this. Now, as you know, आपके पास फोर्स का इक्वेशन है, ऑलरेडी है फोर्स का इक्वेशन, क्योंकि आपने ये इक्वेशन बनाया है पहले ही. B²L² V/R. ओके. आप बोलोगे ये कहाँ से आया? तो ये ऐसा आता है फोर्स का इक्वेशन. इफ यू रिमेंबर, फोर्स F is B into I into L sin theta. Bill sin theta. Force acting on a current carrying conductor inside magnetic field is B into I into L.
तो B इंटू आई, आई अभी अभी हमने बी एल वी बाई आर लिखा है, बी एल वी बाई आर इंटू ये एल अलग से, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये आ गया फोर्स। देयरफॉर पावर P is force into V, but force is, ये फोर्स था ऊपर, but force is B square L square V by R into V, मतलब पावर आ गया आपके पास B square L square V square by R, so you have equation of power, right? Good, तो मिल गया हमको equation of power, so we are done here, खत्म, that's it, this is all you wanted to know. So this is the equation of power. तो ये जो टॉपिक है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इसमें बेसिकली हमको पावर का इक्वेशन निकालना था, राइट? और एनर्जी ट्रांसफर क्यों लिखा है? बिकॉज एज यू नो, जब करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगा, राइट? तो हीटिंग होगा, हीटिंग कितना होगा? यू नो आई स्क्वायर आर, तो हीट भी इतना ही जनरेट होगा जितना पावर है, so that is what you wanted to prove. So in this particular topic, बाकी आप theory पढ़ोगे, ये मेरा expectation है. So in this particular topic, you are just deriving equation for power, and this power leads to heat, which is I square R. और ये I square R करने के बाद भी आपके पास same equation आता है power का. That's it. So now we need to move to next concept, which is self-inductance. अभी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सो लेट अस टेक अ कॉइल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस. मान लेते हैं हमारे पास एक कॉइल है, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, देयर इज अ की के प्लस माइनस. जैसे ही हमने इस की को क्लोज किया तो करंट स्टार्ट होगा. इंपॉर्टेंटली करंट स्टार्ट होगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज ये जो बैटरी है, जो भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, मान लेते हैं कि ये 10 एम्पियर का करंट ड्राइव कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने की क्लोज किया तो डायरेक्टली करंट 10 एम्पियर भी नहीं जाता है, करंट 0 से लेके 10 एम्पियर जाएगा, मतलब करंट चेंज होगा. ऑफ कोर्स आफ्टर सम टाइम करंट विल बिकम कांस्टेंट, बट इनिशियली टू गो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू द करंट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इंक्रीज इन स्टेप्स या कंटिन्यूअसली जैसे भी होगा. तो करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, मतलब जब जब करंट चेंज होता है तो यू नो व्हाट हैपेंस. अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. द आइडिया इज दिस, आपको पता है दैट एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग स्पेस. ओके, अगर हमारे पास करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर तो है नहीं, हमारे पास कॉइल है. कॉइल में जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है. करंट चेंज होना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना, तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है. देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. की क्लोज किया, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद कॉइल ने बनाए और उसके साथ ही ये एसोसिएटेड लिंक्ड है. तो फ्लक्स जो बढ़ रहा था या चेंज हो रहा था, इन सिंपल लैंग्वेज ये खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है. तो नाउ you know from basics of EMI, electronic induction, whenever there is change in flux linked with the coil and EMF is induced, तो यहाँ पे खुद कॉइल का खुद का फ्लक्स चेंज हो रहा है और खुद के साथ एसोसिएटेड है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, राइट? सो the production of induced EMF in a coil due to change in the current, its own current,
is called as self inductance. Okay, तो ये बहुत important है. When the current flowing through a coil changes, the magnetic field and magnetic flux linked with the coil also changes. Okay, ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में. Due to this, an EMF is induced in the coil. This phenomena is called as self-inductance. Simple, right? So self-induction मतलब the phenomena of production of induced EMF in a coil due to change in current in the same coil. Same coil में current change हुआ, उसी में EMF induce हो गया. That is called as self-inductance. Now, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉइल मैंने बताया है इसके साथ फ्लक्स कितना लिंक्ड है. द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और वो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ खुद के साथ लिंक्ड होगा. तो फ्लक्स इज फाई इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं phi equal to Li, where L is constant of proportionality called as coefficient of self-induction or self-inductance in simple language. So L is self-inductance or it is called as coefficient of self-induction. Right? Good. Now, ये जो फ्लक्स फाई है, if this flux is per turn, एक टर्न के साथ इतना, और अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा? तो टोटल फ्लक्स विल बी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, सो NLI. ओके, राइट? तो EMF इंड्यूस क्या आएगा? माइनस d∅dt फ्रॉम लेंज लॉ. तो ये आ गया माइनस d dt ऑफ NLI. तो ये आ गया आपके पास माइनस n कांस्टेंट, L कांस्टेंट, करंट चेंज हो रहा था तो di/dt, राइट? तो आपको मिल गया यहाँ पे L इक्वल टू E अपॉन माइनस E अपॉन N di/dt. ये जो मैंने n लिखा है ना, ये बुक टू बुक वेरी होता है. इन सम बुक्स, मैं बता दे रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ लो और डिफरेंस क्या है वो भी समझ लो. हमारे पास एक कॉइल था, एक सोर्स ऑफ EMF है E, एक की है K. की को क्लोज किया, करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, मतलब करंट चेंज होगा. करंट चेंज होगा मतलब करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, आपको पता होना चाहिए. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और ये फ्लक्स खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है. तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड EMF इंड्यूस्ड, तो EMF इंड्यूस होगा. नाउ द क्वेश्चन इज फ्लक्स कितना? जितना करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतना ज्यादा फ्लक्स. सिंपल लैंग्वेज. तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I. तो फ्लक्स इक्वल टू Li, where L is coefficient of self induction or self inductance. Good. Now some books will say कि जो फ्लक्स फाई है ये है पर टर्न, हर एक टर्न के साथ. तो टोटल फ्लक्स कितना? n into 5. Some books will completely discard this. कुछ बुक्स में ऐसा मिलेगा, आपको बोलेंगे दिस इज टोटल फ्लक्स, दैट्स इट, बात करता हूँ, ये टोटल फ्लक्स है. तो टोटल फ्लक्स है ना, अगर मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक्ड फ्लक्स है. तो इंड्यूस्ड EMF बाय लेंज लॉ इज d∅dt. तो माइनस L di/dt, क्योंकि phi इज L into I और L कांस्टेंट है तो उसको डेरिवेटिव के बाहर निकाल लिया. तो आपको मिल गया यहाँ पे L इक्वल टू माइनस E di/dt. तो आपको मिल गया मॉड L इक्वल टू मॉड ऑफ E अपॉन मॉड ऑफ di/dt. तो सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल. सेम ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. Self-inductance or coefficient of self-induction is defined as the ratio of EMF induced in the coil to that of rate of change of current in the same coil. That is coefficient of self-induction or self-inductance. सिर्फ डिफरेंस क्या है? पिछले लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये फ्लक्स जो है ये सिंगल टर्न के साथ है, तो टोटल फ्लक्स will be n into phi.
तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा n आ रहा था, दैट्स इट। और n वैसे भी नंबर है, so doesn't make any difference really if you write n or if you don't write n, because n do not contribute to units or dimensions. So what is SI unit of self induction? E, EMF मतलब वोल्ट, DID मतलब एम्पियर पर सेकेंड, तो ये आ गया वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर इज ओहम, ओहम सेकेंड, ओहम सेकेंड को हम लोग बोलते हैं हेनरी, तो ऐसा यूनिट इज हेनरी बेसिकली। और डायमेंशंस यू कैन वर्क आउट L2 M1 T-2 I-2 ऐसा आएगा, तो डायमेंशंस ऑफ L यू कैन वर्क आउट बाय योरसेल्फ, राइट? Okay, so that's sufficient for today. In the next session, I will finish this chapter off, probably, most probably, and then it will be completion of 4 more chapters up to chapter number 12.